Hello, let us start with the chapter of functions. Under the chapter of functions, following type of examples we are going to study. First one, whether it is function or not. We need to verify. We will understand it in detail whether it is function or not, that we need to verify. Next one is we need to understand what is called domain, codomain and range. Okay, next one is types of function. We will understand each and every topic. That is one function, many one function, constant function, and next one is we have to understand what we mean by equal functions and what is called real functions. So these are the types of examples we are going to study. हम लोग सबसे पहला जो एग्जांपल है वो स्टार्ट करते हैं कि कोई भी जो गिवन सेट ए एंड बी है, whether they are functions or not, whether they are connected with a function or not. Let us start with illustration number 1, page number 266 of your textbook. Okay, what they have given. Verify whether relations between the elements of the sets given below are functions or not. उसमें फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 3 5 7 9 एंड रिलेशन इज fx, दैट इज फंक्शन दिया हुआ है 2x plus 1 एंड ऑफ कोर्स x बिलोंग्स टू a. देखो कोई भी चीज फंक्शन है या नहीं है वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे. ये जो सेट ए के एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट्स को हम लोग फंक्शन में रखेंगे और उसका आंसर जो है वो कहां से निकलना चाहिए, सेट बी में से निकलना चाहिए. लेट्स ट्राई टू वेरीफाई. fx is equal to 2x plus 1. let's try to put f1, 2 into 1 plus 1. so 2 into 1 that is 2 plus 1 कितना आता है, 3 आता है. तो कहना से वो यहां से निकला. ऐसे सबको वेरीफाई करना है. f2 is equal to 2 into 2 plus 1 that is 4 plus 1 5. yes वो भी निकला. f3 is equal to 2 into 3 plus 1 that is 7, वो भी है. f4 is equal to 2 into 4 plus 1 that is 9, तो वो भी है. so yes it is a function is the answer. let's see second question given in that. p is equal to minus 1 by 2, 0 and 1. yeah, this is 0 and 1 and s is equal to 10 given. now rule is kx is equal to 10. क्या दिया हुआ है, kx is equal to 10. now let me show you. kx is equal to 10. एक एक करके सारी वैल्यूज रखनी है. k into minus 1 upon 2 is equal to. now interesting is on right hand side there is no x, that means what, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, 10 ही रहेगा. अब अगर आप p की वैल्यू एक एक करके रखोगे, k 0 रखोगे तो भी 10 रहेगा, k 1 रखोगे तो भी 10 रहेगा. तो कहना इसे सारे आंसर्स इसमें से निकल रहे हैं, सारे आंसर इसमें से निकल रहे हैं, तो यस इट इज अ फंक्शन. is it fine with everyone? okay, let's move to next example given in that only, that is third question. let's verify. a is equal to 2 5 6 and b is equal to 1 3 by 2 9 by 2, sorry it's 9 by 5 11 by 7 13 by 6. rule, that is function क्या दिया हुआ है, y is equal to 2x minus 1 upon x plus 1. now let's start putting
values of a into this. Y is equal to 2x minus 1 upon x plus 1. Now let's put the value 2, that is 2 into 2 minus 1 upon 2 plus 1. This is 4 minus 1, that is 3, divided by 2 plus 1, 3, that comes to 1. Yes, answer is from here. Let's try to put another value, that is 5. 2 into 5 minus 1 upon 5 plus 1. 10 minus 1 कितना होता है 9, and 5 plus 1 is what 6. So 3 by 2. Yes, this answer is also from set B. चलो अब 6 वैल्यू रख के देखते हैं. 2 into 6 minus 1 upon 6 plus 1. Now 12 minus 1 is what 11, and divided by 6 plus 1 is what 7. So ultimately, can we say all the answers are coming from set B? So yes, it is a function. Let's take question number 4, जहां पे हमें सेट B दिया हुआ है -1 0 1 3 and C is equal to -5 -3 -1 1 3. रूल क्या दिया हुआ है hx is equal to 2x plus 3. Now let's start putting it. hx is equal to 2x plus 3. Now h minus 1 is equal to 2 into minus 1 plus 3 minus 2 plus 3 कितना आता है प्लस 1 आता है. चलो h 0 रखने का ट्राई करते हैं. 2 into 0 plus 3. 2 into 0 हमेशा 0 होता है plus 3, that comes to plus 3. सो देखो एक आंसर आया ये, एक आंसर आया ये, दोनों आंसर्स निकल तो रहे अभी सेट सी में से ही. h1 रखने का ट्राई करते हैं. 2 into 1 plus 3. So this is going to be 2 plus 3 is equal to 5. No, 5 is not given in set C. इसका मतलब ये हुआ, मान लो कोई एक भी आंसर अगर इसमें से सेट C में से नहीं निकलता है तो that means what it is not a function. समझ में आ रहा है? इसके सारे आंसर्स इसमें से निकलने चाहिए, बराबर है. कोई एक भी नहीं निकलता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इट इज नॉट अ फंक्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जब भी ये एग्जाम्पल जो हम लोगों ने किया ऊपर वाला एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो दिस इज कॉल्ड डोमेन, दिस इज कॉल्ड डोमेन, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन. एंड रेंज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट सेट दिया हुआ है उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे, जो सेकंड सेट दिया हुआ है उसको हम लोग कोडोमेन बोलेंगे. और रेंज का मतलब क्या होता है? जो डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट जब आप लोग फंक्शन के अंदर रखते हो, फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन के अंदर रखने के बाद ये जो आंसर्स मिलते हैं आपको, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं. पता चल रहा है? जो सबसे पहला आप लोगों को जो सेट दिया हुआ है उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे, दूसरा जो सेट दिया हुआ है उसको हम लोग कोडोमेन बोलेंगे, और फंक्शन के अंदर डोमेन की सारी वैल्यूज रखने के बाद जो आंसर्स आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं. ठीक है. सो if you look at illustration number 2, they have given certain questions for domain, codomain and range. Please verify. Illustration number 2 में क्या बोला है? obtain domain, codomain and range for the following functions. Let's write down. First question, function a to b जिसमें a is equal to -1 0 and 1 and b is equal to 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. नाउ ऑब्टेन एंड फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 5. अब हमें क्या करना है? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज निकालना है. कैन आई राइट डाउन? डोमेन इज इक्वल टू जो ये a सेट दिया हुआ है वो हो जाएगा -1 0 एंड 1. कोडोमेन इज इक्वल टू जो ये b सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7. and now fx is equal to 2x plus 5. तो चलो इसकी एक एक वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं. f -1 2 into -1 plus
5 माइनस 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा, प्लस में 3। नाउ f0 रखते हैं, f0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 5, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस में 5 हो जाएगा। एंड f1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 5 दैट इज 2 प्लस 5 दैट इज 7। So can we say it is 3, 5 and 7. Range is equal to 3, 5 and 7. So that is how we can find out। जो उन्होंने फर्स्ट सेट दिया हुआ है उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे, जो सेकंड सेट दिया हुआ है उसको हम लोग कोडोमेन बोलेंगे। फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स को फंक्शन में डाल के जो आंसर निकलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है, फाइन। लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इलस्ट्रेशन 2 के अंदर ही यू कैन सी 4 सम दिए हुए, उसमें से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी a टेंड्स टू n। नाउ a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -1, 2, 3 एंड 4 एंड gx इज इक्वल टू 3x प्लस 5। नाउ एवरीवन प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दे हैव गिवन n। n का मतलब क्या होता है पता है, n का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव नेचुरल numbers। So here domain is equal to a is equal to -1, 2, 3 and 4। codomain they have not given, they are saying that codomain is n, मतलब कि हम लोग उसको सेट बी बोल सकते हैं, लेकिन n में नेचुरल नंबर्स यानी क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर, बराबर है। सॉरी, सो दैट विल बिकम कोडोमेन। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करनी है। प्लीज चेक, gx इज इक्वल टू 3x प्लस 5। g में -1 की वैल्यू रखेंगे पहले तो हम लोग, तो 3 -1 प्लस 5 -3 प्लस 5 कैन वी से इट कम्स टू 2। उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है g2 की वैल्यू रखूंगा मैं, 3 इंटू 2 प्लस 5, 6 प्लस 5 दैट कम्स टू 11। उसके बाद हम लोग g3 की वैल्यू रखेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 5 सो ये हो जाएगा 14। एंड g4 की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 4 प्लस 5 सो ये हो जाएगा 17। सो कैन वी से अगर कोई हमें रेंज पूछता है तो इन सब के आंसर्स हम लोग लिखेंगे, इट इज 2, 11, 14 एंड 17। सो दिस इज गोइंग टू बी अवर रेंज। ओके, कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। h ओके p दिया हुआ है हमें यहाँ पे, p इज इक्वल टू -2, -1, 0 एंड 1। s दिया हुआ है हम लोगों को -4, -3, -2, -1। hx इज इक्वल टू x -2। चलो लेट्स स्टार्ट। h -2, -2 -2 -4 हो जाएगा। h -1, -1 -2 -3 हो जाएगा। h0, 0 -2 -2 हो जाएगा। एंड h1, 1 -2 -1 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में रेंज की बात करें तो दिस इज गोइंग टू बी -4, -3, -2 -1। सो रेंज, ओके, उसको रेंज ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं, -4, -3, -2 -1। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी डोमेन, दिस इज कोडोमेन एंड एज वी डिस्कस जो हमने फाइंड किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। सिट डन, कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। a इज इक्वल टू -1/2, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2।
चलो फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू, और वी कैन से के एक्स इज इक्वल टू, दे हैव गिवन 4x स्क्वायर प्लस 3. नाउ यहाँ पे डोमेन दे हैव गिवन -1/2, 0 and 1/2. कोडोमेन इज इक्वल टू, दे हैव गिवन z. सो उसमें क्या आएगा, माइनस के सारे फिगर्स आ सकते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन. ठीक है, सो इसमें नेगेटिव फिगर्स भी आ सकते हैं, पॉजिटिव फिगर्स भी आ सकते हैं और जीरो भी आ सकता है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ function kx is equal to 4x square plus 3. Let's start putting values one by one. -1/2 is equal to 4 into -1/2 square plus 3. So 4 into 1/4 plus 3, 4 4 कट हो जाएगा, so 1 plus 3 कितना होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा. Now we are going to put a value of k 0, 4 into 0 square plus 3, so 0 plus 3 comes to 3. And let's put the value of k 1/2 is equal to 4 into 1/2 square and plus 3. So 4 into 1/4 plus 3, 4 4 कट हो जाएगा, अगेन 4 हो जाएगा. So यहाँ पे अगर हम लोग रेंज की बात करें, so it is going to be 3 and 4. So domain, codomain and range. Are you able to understand? It's a very easy topic. So हम लोगों ने दो चीजें की अभी तक, एक तो कोई भी चीज फंक्शन है या नहीं है वो चेक किया हमने, एंड दूसरा रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन.